Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you all students of standard 6. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you to all to this our MCGM VTC online video session. And students, today we are going to learn about bank and simple interest. And thereafter we are solving here the practice set 35. ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ पर शशुम जमात में रियाजी मजमून में बैंक और मुफर्रद सूद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही जो है तो प्रैक्टिस सेट 35 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। So students, you know that the bank is a very important part of our life. So you will observe the bank in our day-to-day life. So you know that a bank is a government organized organization that carries out transaction of money. It is financial organization. Finance relates to the money. तो हम देखते हैं बच्चों के बैंक जो है तो सरकार से मंजूर शुदा एक मालियाती कारोबार करने वाला एक इदारा होता है। ठीक है, एंड यू नो डैट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये स्क्रीन पर आपको इमेज नज़र आ रही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप हर हमारी नोट पर, करेंसी पर आप इसको देखते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं बैंक में जो है तो आमतौर पर पैसों का लेन देन होता है ना। हम जब कभी हमें पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा जमा कराना होता है, तो हमें बैंक में जाना होता है ना। आजकल आपने देखा है कि हर एक काम जो है तो हमारा ऑनलाइन हो गया है ना। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें जो है तो बहुत सारी चीज़ों की आजकल सुविधा हो गई है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि बैंक का अहम तरीन काम जो है तो पैसों का लेन देन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक में किस तरह से खाता खोला जाता है। हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। सो देयर आर सम necessary documents which are required to open a bank account. So there are some ID proof, residence proof, and other documents are necessary for this one. So you will see here that the proof of identity is a compulsory, and in this regard you will see that the Aadhaar card, voters card, identity card, PAN card, passport, and any other proof suggested by the bank. So beside a reference from the another customer who is an account holder. तो हम देखते हैं बच्चों आमतौर पर कि जब कभी हमें बैंक में अकाउंट खोलना होता है, so first get a form from for opening a account in the bank, fill it correctly and sign it and get the signature from an existing account holder in that bank as a reference, है ना। हमें यहाँ पर जो है तो जब भी किसी का अकाउंट होता है उसका हमें यहाँ पे एक इंट्रोड्यूसर बोल के एक साइन वहाँ पे लेना होता है। And we are supposed to attach these documents, which are the ration card, electricity or telephone bills, and these are the residence proof, and some proof are related to the identity, and they that are Aadhaar card, voter identity card, which are on your screen, passport. So these are the identity proofs which are on your screen, and some are
related to the residence proof. As you will see here, this one is a Aadhaar card, and this one is a ration card, then electricity bill, and domicile certificate, and telephone bill. These all are the residence proof, so we must have to carry these all things, that we can easily uh, open the account. Okay, and copies of the latest photograph is also necessary there. So these are the documents which are required to open a account in the bank. Now we'll observe the type of accounts. So there are saving accounts and current accounts. So there are two types of account usually used by the people. So you will see here that the bank give us an interest of 4% to 6% on the money in the saving accounts, and the customer gets facilities like passbook, checkbook, ATM card, mobile banking, SMS banking, internet banking, etc. to operate the account. So I think if you observe around, or you maybe observe these all things in your home also, that while you are having while you are having a account in any bank, you if any transaction is went out there, you'll see the message like this on your mobile phone. These are the cards on your screen. So these are the debit card or ATM cards which are used to draw a money from this kind of ATM. So these all things you must observe in your डे टू डे लाइफ. तो बच्चों, आपने अपने घर में जो है तो ये सारी चीज़ों को देखा होगा जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है ना. आपने अपने घर में अपने बड़ों के साथ में जो है तो ये सारी चीज़ों को देखा होगा, है ना. तो सेविंग अकाउंट इज़ अ वे of making a habit of saving money. An account holder can deposit or withdraw money. The number of withdrawals is restricted. Bank gives 4% to 6% interest on money in the account. The customer gets facility like passbook, checkbook, ATM cards, mobile, SMS, banking, etc. तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों की जो बचत खाता हो बोलते हैं जिसे हम उर्दू में सेविंग अकाउंट को. तो बचत खाता इसलिए होता है कि लोगों को बचत करने की आदत हो जाए. खातादार इसमें रकम जमा कर सकता है और रकम निकाल भी सकता है, अलबत्ता वो मुकर्ररा मर्तबा ही रकम निकाल सकता है. ओके, खाते में जमा रकम पर बैंक जो है तो 4% से 6% तक सूद देता है. बैंक जो है तो खातेदार को पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल, एसएमएस, बैंकिंग की सहूलियात भी देता है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो सेविंग अकाउंट के बारे में बात की है. अब हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे वी हैव टू फिल अ सर्टेन प्रिंटेड स्लिप टू डिपॉजिट मनी इन द अकाउंट टू विदड्रॉ it. Every bank has its own different forms, but the information to be given in it is the same. यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जब कभी आपको जो है तो बैंक में पैसा जमा करने का है तो ये स्लिप भरना पड़ती है. ठीक है, इसमें हम जो है तो चेक भर रहे हैं तो चेक का नंबर डालना पड़ता है, बैंक का नाम डालना पड़ता है, ब्रांच डालना पड़ता है ना, और चेक का नंबर डालना पड़ता है, अमाउंट डालना पड़ता है, डेट है, टाइम है, नाम है, किसके नाम पे अकाउंट में हम डाल रहे हैं, वो जो है तो कौन सी ब्रांच है उसकी, वो ये सब यहाँ पर फिल करना पड़ती है. तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से ये कस्टमर कॉपी है ना, काउंटर फाइल जिसे कहते हैं, तो ये हमको रिटर्न मिल जाती है. बैंक ये स्लिप अपने पास रखता है और इसकी मालूमात पर वो अपने अकाउंट में वो पैसा जो है तो ट्रांसफ़र कर देता है, डाल देता है. तो ये डिपॉजिट स्लिप कहते हैं इसे आमतौर पर. ओके,
तो डिपॉजिट स्लिप हर एक बैंक का अलग अलग अपना अपना जो है तो प्रोफार्मा होता है। ये प्रोफार्मा आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है ये स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का है ना। तो आप अलग अलग बैंकों में इस तरह के अलग अलग स्लिप, जो डिपॉजिट स्लिप है वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, जिसे रवा खाता कहते हैं। तो हम देखते हैं आमतौर पर बच्चों कि ये खाता कंपनियों, ताजिरों के लिए मुफीद होता है। खातेदार एक ही दिन में कितनी भी मर्तबा रकम जमा कर सकता है या निकाल सकता है। ठीक है, बैंक इस खाते में जमा रकम पर सूद नहीं देता है नॉर्मली। सो देयर आर अनदर अकाउंट of a bank account, and it is called a current account. Money can be withdrawn from it any number of times, but one does not get any interest on the amount in this account. तो हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस की, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको जो है तो पैसा निकालने की रिस्ट्रिक्शंस होती है। यहाँ पर आप कितनी भी बार पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो करंट अकाउंट में। सो हियर इज अ डिफरेंट बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो हम देखते हैं बच्चों की कुछ दीगर किस्म के खाते होते हैं जिसमें जो है तो मुतय्यन मुद्दत का अमानत खाता, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ऐसी एक स्लिप मिलती है, आप देखेंगे एक सर्टिफिकेट मिलता है। टू गेट मोर इंटरेस्ट वी हैव टू कीप अ फिक्स्ड अमाउंट इन अ बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड of time. We can avail facilities like the fixed deposit, FD, or a recurring deposit. Okay, so RD schemes for that purpose. So recurring deposit, जिसे हम क्या कहते हैं, RD कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जो ये स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं वो इमेज एक फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट है, जिसे हम यहाँ पर FD कहते हैं। ठीक है, तो ये FD की एक यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है। आपने देखा है कि अभी आप स्टैंडर्ड 6 में हो ना। सो इफ़ योर, अगर आप देखेंगे कि आपकी स्कूल में लड़कियों को जो है तो एक मूल्य उपस्थिति भत्ता करके मिलता है ना। तो उसमें देखा है आपने कि आपका अमाउंट जो है तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कर दिया है ना, FD बना दिया है आपके अमाउंट का। जो आप डेली स्कूल आते हो तो वो अमाउंट आपका FD हो गया, फिक्स्ड हो गया, और आपको जब 18 ईयर्स के आप होंगे तो तब आपको वो अमाउंट मिलेगा है। तो इस तरह की आपको स्लिप या पासबुक वगैरह आपको स्कूल में आपसे टीचर से ज़रूर मिली होगी। तो वो एक एग्जाम्पल है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट की, FD की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर कि जो सूद की शरह हैं उसका हिसाब है वो किस तरह का होता है। तो हम देखते हैं कि बैंक खातेदार को बैंक में रकम जमा करने की औज़ जो है तो सूद देता है या कुछ रकम देती है। ठीक है, अकाउंट होल्डर्स ऑफ द बैंक आर पेड सम अमाउंट फॉर कीपिंग देयर मनी इन द बैंक। कर्जदारों को रकम इस्तेमाल करने पर बैंक इनसे कुछ रकम वसूल करती है, ऐसी रकम को सूद कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु बोरो फ्रॉम अ बैंक आर चार्ज्ड एन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द मनी लोन्ड टू देम। सच अमाउंट्स आर कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैंक दिए हुए कर्जों पर सूद वसूल करता है। बैंक में जमा रकम या बैंक से लिए हुए कर्ज को हम असल ज़र कहते हैं। ओके, बैंक में जमा रकम या बैंक से कर्ज ली हुई रकम को असल ज़र कहते हैं। ठीक है, द मनी डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ द और द मनी लेंट बाय अ बैंक
to a borrower is called the principal. ओके, तो इसे आपको याद रखना है बच्चों। सो असल ज़र जिस अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अरसे को मुद्दत कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पर कि the interest charged in a fixed principal of 100 per year is called a simple interest. Okay, so when calculating interest on a loan or a deposit, the rate of interest is given for every 100 rupees. A rate of interest percent per year for annum. PCPA gives the amount of interest due on every 100 rupees for a period of 1 year. ठीक है, ये याद रखना है आपको बच्चों यहाँ पर। तो ये ज़रूरी मालूमात हम यहाँ पर आपको शेयर कर रहे हैं बच्चों। When calculating interest on a deposit on or a loan, the rate of interest is given for every 100 rupees. The rate of interest is for given period of a time. A rate of interest percent per annum written as PCPA. Okay, percent per annum, PCPA, gives the amount of interest due on every 100 rupees for the period of 1 year. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तो देखते हैं बच्चों कि सूद की शरह फीसदी फी साल होती है, जिसका मतलब है हर साल हर 100 रुपए पर 1 साल की मुद्दत का सूद होता है। ओके, ये याद रखते हैं आपको। तो असल ज़र पर दी हुई शरह सूद से दी हुई मुद्दत के सूद को हम मुफर्रद सूद कहते हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों जो हमने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर मज़ीद आगे बात करेंगे। In this class we shall learn only about the interest charged for 1 year. This is simple interest. The interest charged for longer period of time can often be quite complicated. That rate is different from the simple interest. Okay, so here is a example for you some which is on your screen. So यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें। जैसा उनैसा ने 7% फी साल की शरह से बैंक में जो है तो 15,000 रुपये 1 साल के लिए अमानत के तौर पर रखा। तो बताइए इसको साल के आखिर में कितना सूद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि जो है तो उसका जो यहाँ पर सूद है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया है कि जो 15,000 रुपये पर 1 साल के लिए जो सूद है वो x रुपये है, ठीक है। ये हमने फ़र्ज़ किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेप किस तरह से बनेगा, x अपॉन 15,000 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर हम देखेंगे 7% है ना, यानी 100 पर 7, तो इसलिए 7/100 हमने यहाँ पर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफेन को हम यहाँ पर जो है तो 15,000 से ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास स्टेप किस तरह से आएगा, यहाँ पर x अपॉन 15,000 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 7/100 इंटू 15,000। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसे मुख्तसर अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 150 इंटू 7 अगर किया हमने यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा
1050। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसको साल के आखिर में कितना सूद मिलेगा, 1050 रुपीज़, इस तरह से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं हम यहाँ पर बच्चों, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि शहनाज ने कुएं पर मोटर पंप लगाने के लिए 8% फी साल की शरह से बैंक से 20,000 रुपये कर्ज लिए। एक साल बाद वो बैंक में जो है तो कितनी रकम अदा करेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं असल ज़र कितना है, तो वो 20,000 रुपये है, और 8% फी साल की शरह है, यानी 100 रुपये असल ज़र पर एक साल का 8 रुपये जो है तो सूद लग रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि असल ज़र के हिसाब से सूद बदलता है, यानी सूद और असल ज़र के दरमियान निस्बत जो है तो मुस्तकिल है। ठीक है, तो सूद की असल ज़र से निस्बत को दो सूरतों में लिखकर मसावातें हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि हमने यहाँ पर फर्ज किया कि जो सूद होगा उसका वो कितना होगा, वो x हमने यहाँ पर फर्ज किया। तो आप देखिए यहाँ पर कि x अपॉन 20,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने देखा कि 8% फी साल मीन्स 8 अपॉन 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम तरफेन को यहाँ पर 20,000 से ज़रब करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 इंटू 8 अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 1600 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि एक साल बाद वो बैंक में जो है तो कितनी रकम अदा करेगा, उसको कितनी रकम अदा करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सूद प्लस असल ज़र है ना। ठीक है, तो बैंक को दी जाने वाली रकम यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2000, यहाँ पर 20,000 है ना, तो यहाँ पर 20,000 जो हम यहाँ पर अमाउंट है वो ले लेंगे। ठीक है, 20,000 प्लस 1600, सो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 21,600 रुपीज़। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक साल बाद वो कितनी रकम अदा करेगा, वहाँ पर 21,600 रुपीज़, इतना पैसा वो जमा करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों इसी तरह के सवालात जो है तो यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, हम देखते हैं इन सवालात को। तो उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बच्चों से जो ज़रूरी हम यहाँ पर समझते हैं, उसे आपको यहाँ पर याद कर लेना है। सो प्रिंसिपल, उसके बाद में इंटरेस्ट, फिर नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर अमाउंट। ओके, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है तो हम प्रिंसिपल कहते हैं किसको, P से ज़ाहिर करते हैं, इंटरेस्ट को I से ज़ाहिर करते हैं, नंबर ऑफ ईयर को N से ज़ाहिर करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से ज़ाहिर करते हैं, अमाउंट को जो है तो A से ज़ाहिर करते हैं। ओके, उर्दू में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इसे हम असल ज़र कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्ट को हम सूद कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर यानी N को जो है तो मुद्दत से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, शरह सूद कहते हैं। क्या कहते हैं, शरह सूद कहते हैं। इसी तरह से अमाउंट को हम जो है तो कुल रकम से यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे PINR और A, ये जो आप 5 यहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, इससे आपको याद कर लेना है। ओके, क्योंकि इस किस्म के जो सवालात होंगे उसमें आपको इसका रिपीटेशन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट we'll observe here
a rate of interest of 10 PCPA, what would be the interest for 1 year on 6,000? यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 35 से। तो इसमें यहाँ पर क्या पूछा है इसने पूछा है कि 10% फी साल की शरह से 6,000 रुपये का एक साल का मुफर्रत सूद कितना होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6,000 है, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 PCPA यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से दिया है। असल जर जो है तो 6,000 है, मुद्दत 1 साल की दी हुई है, और शरह सूद जो दिया है वो दिया है 10% फी साल की शरह सूद है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है तो हम देखेंगे बच्चों, इंटरेस्ट increases in proportion to the principal। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सूद जो है तो असल दर के तनासुब में बढ़ता है, ये बात आपको मालूम है। ओके, सो लेट द इंटरेस्ट ऑन 6,000 बी एक्स। तो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि 6,000 का जो सूद है वो x रुपए है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर फर्ज किया है। तो देखेंगे आपकी यहाँ पर द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज इज गिवन टू बी 10 रुपीज। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 रुपए का सूद जो है तो 10 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस टेक द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल। ओके, यानी सूद की असल जर से निस्बत हमें यहाँ पर लेना है। ओके, और इसे दो सूत्रों में लिखना है और मसावत बनाना है। ओके, सो दिस टेक द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल, write it into two form, obtain an equation and solve that। ओके, सो यहाँ पर हमने सबसे पहले अज्यूम किया है जैसे x। ठीक है, let the interest on 6,000 be x, so x upon 6,000 is equal to 10 upon 100। okay, so what suppose we have to do here, so we are supposed to multiply this equation by 6,000। सो हम देखेंगे तरफैन को जो है तो हम 6,000 से ज़रब करते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6,000। सो यू विल सी हेयर दैट दिस विल बी कैंसिल एंड you will get here 60 into 10। so you will get the answer here 6,600। okay, like this। so what will be the answer here, yearly interest would be 600, यानी एक साल का जो सूद होगा वो कितना होगा 600 रुपये होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों यहाँ पर। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so Mahesh deposited 8,650 rupees in a bank at a rate of 6 PCPA. How much money will he get at the end of the year in all? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो है तो 8,650 रुपीज़ 6% फी साल की शरह से एक साल के लिए बैंक में जमा रखे। तो बताइए कि एक साल बाद इनको जो है तो कुल कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेयर प्रिंसिपल अमाउंट इज 8,650 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 PCPA इज हेयर। यहाँ पर आप देखेंगे कि असल जर जो है तो 8,650 रुपये है, मुद्दत 1 साल की है, शरह सूद जो है तो 6% फी साल की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्ज किया सबसे पहले लेट द इंटरेस्ट ऑन 8,650 रुपीज़ इज एक्स। ओके, यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि 8,650 रुपये का सूद जो है तो एक्स रुपये है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स अपॉन 8,650 is equal to 6 upon 100।
And the next step, we are supposed to multiply both the side by 8650. So you see here that this will be cancelled here, and finally we get the answer here. X is equal to 519. X is equal to 519 will be the answer here. Okay, so the principal amount is 8650, and the interest is 519 rupees. So you will see here the addition of this principal amount plus interest means 8650 plus 519 is equal to 9169 rupees. Okay, so इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर Mahesh will get 9169 at the end of the year. तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि असल ज़र जो है तो कितना है यहाँ पर, वो है 8650, और सूद कितना है 519। तो इसकी जमा करनी होगी हमें, तो इसकी जमा हमने किए तो कितना मिला हमको 9100, यहाँ पर 9169 रुपीज़ हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि महेश को जो है तो एक साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 9169 रुपीज़ उसको मिलेगा इस तरह से। ओके, नाउ विल मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन। अहमद चाचा borrowed 25,000 at 12 PCPA for a year. What amount will he have to return to the bank at the end of the year? यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने जो है तो 25,000 रुपये कर्ज लिए हैं, सूद की शरह जो है तो 12% हो, तो एक साल बाद इन्हें बैंक को कितने रुपए अदा करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर असल ज़र जो है तो कितना है 25,000 है, मुद्दत कितनी है 1 साल की है, और शरह सूद कितना है 12% फी साल है। ओके, here principal amount is 25,000, time duration is 1 year, and rate of interest is 12 PCPA is here. So now we assume here, let the interest on 25,000 be x. हमने फर्स्ट किया यहाँ पर कि 25,000 रुपये का सूद जो है तो x रुपये है। ओके, सो then the x upon 25,000 is equal to 12 upon 100. So x upon 25,000 into 25,000 is equal to 12 upon 100 into 25,000. It means multiplying both the side by 25,000. So after doing this, you will see that x is equal to 3,000. Okay, x is equal to 3,000. 12 into 25, 2,250 means it will be 3,000. X is equal to 3,000. So you see here the principal amount is 25,000 and interest is 3,000. So we are supposed to do the addition of this amount. So principal plus interest is equal to 25,000 plus 3,000, and it would be 28,000. Okay, so you will see there here that the Ahmed Chacha will have to return 28,000 to the bank. Okay, तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि हमने यहाँ पर जो है तो सबसे पहले फर्स्ट किया कि 25,000 रुपये का जो सूद है वो x रुपये है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, x बटे 25,000 बराबर
12/100 लिया। उसके बाद देखेंगे आपने कि इस स्टेप को हमने यहाँ पर क्या किया है, जो है तो तरफेन को हमने यहाँ पर 25,000 से ज़रब करने पर हमें यहाँ पर ये स्टेप मिला। ठीक है, इस स्टेप में आपने देखिए कि हमने इसे मुख्तसर किया तो हमें यहाँ पर x = 3000 मिला। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रिंसिपल अमाउंट में हमने इंटरेस्ट को ऐड किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, 28,000 मिला है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि अहमद चाचा जो है तो इन्हें बैंक को जो है तो 28,000 रुपये रिटर्न देना होगे इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किशन राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड, ही borrowed 35,250 rupees from a bank at an interest of 6 PCPA. How much interest will he have to pay to the bank at the end of the year? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है कि कुआं खोदने के लिए इन्हें जो है तो बैंक से 35,250 रुपये 6% फी साल की शरह से 1 साल के लिए कर्ज लिए हैं इन्होंने। तो बताइए कि इसे साल के आखिर में बैंक को सूद के कितने रुपए अदा करने होंगे। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि असल ज़र जो है तो वो कितना है, 35,250 रुपीज़ है। टाइम पीरियड कितनी है, मुद्दत है 1 साल की, और इंटरेस्ट जो है वो कितना है, शरह सूद जो है तो 6% फी साल की शरह है। Rate of interest is 6 PCPAs here. So now यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट किया कि जो 35,250 रुपीज़ का इंटरेस्ट है वो x रुपीज़ है। ओके, so let the interest on 35,250 rupees will be x here. So यहाँ पर हम देखेंगे then हमें यहाँ पर किस तरह से स्टेप हमारा यहाँ पर बनेगा, x upon 35,250 is equal to 6/100। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 35,250 rupees, so you will see here that this step will be here like this। इसके बाद आप देखेंगे इससे हम यहाँ पर अगर मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x = 2,105 ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, ठीक है, जब इसको मुख्तसर करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 3 6 2 5 10, ठीक है, और फिर इसे और भी आगे हम इस तरह से मुख्तसर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि 2115 इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे x = 2,115 मीन्स किशन राव हैव टू पे 2,115 एज इंटरेस्ट टू द बैंक। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बैंक को जो है तो इनको कितने पैसे अदा करने होंगे, 2,115 रुपये अदा करने होंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों काफ़ी आसान सवालात है, आप आसानी से इन सवालात को अपने तौर पर हल कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए और ज़रूर से इन सवालात को सेशन के बाद अपने तौर पर हल करने की कोशिश करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।